Hello students, welcome to my channel High Education. So today we are going to start our history 7 chapter, it's science and technology. So before starting, first of all, like to my video, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. Okay. So in previous chapter we have learned about women's empowerment, how women got their freedom, what type of struggle they had faced in that time. Now and in this chapter we are going to learn about science and technology in our India. So let's start it. In this chapter, we shall study India's achievement in the area of science and technology. Also, we are going to learn about the important institute in the areas of science and technology and their contribution. In this chapter, we are going to learn about science and technology. Science and technology के बारे में हम इस chapter में पढ़ने जा रहे हैं and what was the contribution of most of the scientists we are going to see in this chapter. Indian Atomic Energy Commission. India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru wanted to nurture a scientific temper and bring about the nation's progress. So जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे इंडिया को भी प्रोग्रेस करना चाहिए, हमारे इंडिया की भी जो प्रोग्रेस की लेवल है वो आगे बढ़नी चाहिए. From this perspective, he set up the Indian Atomic Energy Commission on the 10th August 1948. So इसी बेसिस पे उन्होंने इंडियन एटॉमिक पावर सेंटर को एस्टैब्लिश किया 1948 में अगस्त में. डॉक्टर होमी भाभा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड उसके फर्स्ट चेयरमैन मीन्स उस एटॉमिक सेंटर के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा. The objective of the commission were to produce electricity from atomic energy. बट उसका मेन मोटिव क्या था कि एटॉमिक एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो एटॉमिक एनर्जी से, सब जगह बिजली पहुँचे, सबके घरों तक बिजली जाए, सबको लाइट्स मिले. बिकॉज आज के टाइम पे मीन्स हम मोस्ट ऑफ वर्क जो हमारे रहते हैं वो लाइट्स में ही हो पाते हैं. बिकॉज इफ़ हमें स्टडी करना हो या कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना हो तो लाइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. The objective of commission were to produce electricity from atomic energy, increase the yield of the food grain and make them last longer, set up technology for achieving this and developing nanotechnology. In 1956, the Department of Atomic Energy set up Apsara, a nuclear reactor functioning on the atomic energy. और 1956 में हमारे जो इंडियन एटॉमिक सेंटर थे उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया? अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शनिंग. अप्सरा उन्होंने क्या किया? उसको एस्टैब्लिश किया. In 1969, an atomic power station was set up at Tarapur. And atomic power center कहाँ पे सेटअप हुआ? तारापुर में. A reactor research center was set up at Kalpakkam in Tamil Nadu to successfully use thorium for generating atomic power. And उसके बाद second reactor research कहाँ पे establish हुआ? सेंटर उसका Kalpakkam in Tamil Nadu. The role of reactor is important in developing atomic power. Factories manufacturing the heavy water needed for the generation of atomic power were set up at Vadodara, Talcher, Tutki, Kornin, कोटा एक्सेट्रा. सो इन सारे जगहों पे ना एटॉमिक पावर को सेट अप किया गया था. एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड हैवी वॉर projects were set up to carry out research on manufacturing heavy water with the country. एंड एक और प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था जिसका नेम था और वो किस चीज़ के लिए सेटअप किया गया था? वाटर्स के लिए, ताकि वाटर भी सबके घरों तक ईजिली अवेलेबल हो सके. इट वॉज लेटर रीनेम्ड हैवी वाटर ब्रोड एंड बाद में उसको नेम क्या दे दिया गया? हैवी वाटर ब्रोड. दुर्वा
Nuclear reactor. In 1985, a completely Indian-made nuclear reactor called Dhurva was started at Trombe near Mumbai. सो ये जो ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में उसको एस्टैब्लिश किया गया था? 1985 में. The Dhruva nuclear reactor uses uranium as fuel. वो यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करते थे. जहाँ पे ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर था वहाँ पे जो भी वर्क होता था वहाँ पे यूरेनियम एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया जाता था. एट दिस सेंटर 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर प्रोड्यूस. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन. एंड उसमें रेडियो एक्टिव 350 से ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनते थे जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन के लिए यूज़ होते थे. न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL इसका शॉर्ट फॉर्म है. द कंपनी वॉज सेट अप इन 1987 टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज़ टू मास्टर द डेवलप द टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ, चीप एंड एनवायरमेंटली प्रॉफिटेबली पावर एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट. तो उसके बाद एक कंपनी सेटअप किया गया इंडिया में 1987 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल सके. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर टेस्ट. फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण. India successfully performed her first nuclear test at Pokhran in Rajasthan on 18 May 1974 in consequences with the policy of using nuclear energy of peaceful and for self-sufficiency. So, इंडिया ने अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया था. कहाँ पे? पोखरण में. फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, वो भी कहाँ पे? पोखरण में. एंड कभी वो टेस्ट हुआ था? 18 मई 1947 को. और जो सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब इंडिया ने खुद उसे एस्टैब्लिश किया था, खुद उसका टेस्ट करवाया था. The reason why India took this decision was China nuclear capability and Pakistan separate effort to acquire nuclear weapon with China's help. क्यों ये सेटअप किया था इंडिया वालों ने? बिकॉज चाइना जो पाकिस्तान की इतनी हेल्प करता था एंड चाइना की वजह से जो पाकिस्तान इतने सारे न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ करता था इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके लिए इंडिया ने भी अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करवाया. एंड वो भी खुद से इंडिया ने वो टेस्ट किया. डॉक्टर होमी सेतना, द चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक कमीशन, एंड डॉक्टर राजा रामानंद, डायरेक्टर ऑफ द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, played a major role in the conducting this nuclear test. Prime Minister Indira Gandhi took the decision of carrying out a nuclear explosion. सो उसके जो चेयरमैन थे उनका उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल था. एंड उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद की जो प्राइम मिनिस्टर थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को आगे कैरी किया. रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट फॉर अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व. सो किसके लिए था? मतलब ये लोकेशन उस लोकेशन पे लगाया गया था जहाँ पे वो अपने अगेंस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो जहाँ पे वॉर करते उस प्लेस पे उसको सेटअप किया गया था. सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट. ऑन 11 May 1998 इंडिया कैरिड आउट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर preparedness. 3 tests were done on this day. One of them was the hydrogen bomb. So क्या हुआ था? 11 मई 1998 में इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट अपना किया. एंड उसमें 3 टेस्ट हुए थे. उसमें से फर्स्ट था हाइड्रोजन बॉम्ब का. प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapon by India. So प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बताया था कि कोई भी वेपन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए इंडिया में. बट USA imposed economic sanction on India immediately. बट USA ने क्या किया? इकोनॉमिकली सैंक्शन किया इंडिया पे कि नहीं तुम उसे यूज़ करो.
Missile development. Prithvi. In 1988, India successfully tested the missile Prithvi, and in 1989, the missile Agni. The entire world took note of India's program of developing nuclear missile indigenously. So पृथ्वी 1988 में इंडिया ने अपना पृथ्वी कर नेम्ड मिसाइल लॉन्च किया, एंड उसके बाद मिसाइल अग्नि। तो इंडिया एक के बाद एक मिसाइल्स लॉन्च करते ही जा रहा था, और ये जो प्रोसेस चल रहा था वो सारी कंट्रीज़ नोट कर रही थी, मतलब ऑब्जर्व कर रही थी। Integrated Guided Missile Development Program was conceived by the carried out under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. Defense Research and Development Organization undertook the task of building the missiles. And उसके बाद इंटीग्रेट गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कंसीव्ड किया। किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल, एंड उन्होंने किस चीज़ का टास्क लिया था? मिसाइल्स को बनाने का। Was given to Air Force while Prithvi 3 was given by the Navy. Prithvi had the capacity to carry nuclear weapons of 500,000 gram. Prithvi could travel a distance of 150-300 kilometer due to the nuclear बैलिस्टिक मिसाइल। सो पृथ्वी कितना कैपेसिटी न्यूक्लियर वेपन्स का उसमें कितनी कैपेसिटी थी हैंडल करने की? 500 to 1000 kg तक की। एंड पृथ्वी कितना दूर तक ट्रैवल कर सकता था? 150 to 300 किलोमीटर। अग्नि। इन ऑर्डर दैट चाइना एंड पाकिस्तान गेट एन आइडिया ऑफ इंडियाज मिसाइल स्ट्रेंथ एंड इंडिया बॉर्डर रिमेन सिक्योर, अग्नि वॉज टेस्टेड। सो क्या हुआ था ना, चाइना एंड पाकिस्तान में बहुत मीन्स जम रहा था। In order that China and Pakistan get an idea of India's missile strength and India border remains secure, Agni A-1 was tested. This military missile had a range of 700 meters. Later, Agni 2 and Agni 3 were also produced. So, चाइना एंड पाकिस्तान के वजह से इंडिया ने अग्नि 1, उसके बाद अग्नि 2 एंड अग्नि 3 मिसाइल्स भी प्रोड्यूस किए to secure our India's border. Akash and Nag missile. In 1990, the missile Akash was developed to fire from land into air. This missile has a capacity to carry 720 kg explosive at supersonic speed and a range of 30 kilometers. The missile Nag was made in the order to destroy the tanks of the enemy. So मिसाइल आकाश एंड नाग क्यों बनाया गया था? ताकि जो हमारे दुश्मन कंट्री हो, अगर वो हम पे कोई भी वॉर करे, देन हम उनको उनके तरह ही करारा जवाब दे सके। एंड नाग मिसाइल क्या, एनिमी के जो टैंक्स उन लोग लेके आते हैं, कुछ भी फ्यूल भर के आए, वाटर भर के डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। It is the one of fire and forget type. India has militarily become secure due to the production of missiles. Space research. In 1961, Indian National Committee for Space Research launched India's first research rocket from Tumba Equatorial Launch Center in the Tumba in the state of Kerala. So, India ने अपना फर्स्ट नेशनल रिसर्च लॉन्च किया, वो भी कहाँ से? तुम्बा से, and in the state of Kerala. In 1969, our indigenously built rocket Rohini 75 was successfully launched, and 1969 में हम रोहिणी 75 करके एक रॉकेट था, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था इंडिया से। The next stage was the successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with help from the Soviet Union. एंड उसके बाद आर्यभट्टा करके भी एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ, एंड वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन से। दिस सक्सेस प्रूव दैट इंडियन साइंटिस्ट कैन indigenously build and launch a satellite. Indian scientists were confident that they could acquire the technology for sending a message from the Earth's station and to assess the working of the satellite. And एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड अच्छे वर्क्स करने के बाद इंडिया ने भी ये प्रूव किया कि इंडियन साइंटिस्ट भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
Indian Space Research Organization. After the success of the basic program in space research and rocket related project, India Space Research Organization was established on 15th August 1969 in order to carry out further space research. And इसके बाद इंडिया ने अपना एक और स्पेस रिसर्च एस्टैब्लिश किया 15 अगस्त 1969 में. द हेडक्वार्टर ऑफ द इसरो आर एट बेंगलुरु एंड इसरो का हेडक्वार्टर किधर है? बेंगलुरु में. इसरो एक्टिवेटेड द स्पेस स्टेशन at Sriharikota in Andhra Pradesh for launching our satellite in space. And उसका स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? वो श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में AP में है. Bhaskar 1. India launched remote sensing experimental satellite Bhaskar 1 from the Soviet Union in 1979 in order to observe various things on the surface of the earth by remote sensation technology. Bhaskar 1 को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज ऑब्जर्व करने के लिए, ताकि अर्थ से लेके पूरे सरफेस में क्या क्या चल रहा है. The remote sensing technology would be useful for India's development by regarding water bodies, mineral deposits and forecasting weather. And भास्कर 1 किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? वाटर बॉडीज मीन्स कहाँ कहाँ पे बाढ़ आ रहा है, इधर ये समुद्र वाटर का लेवल हाई हो रहा है या लो हो रहा है, वो देखने के लिए. वेदर फोरकास्टिंग, देन मिनरल डिपोजिट, वो सब चीज़ों के लिए भास्कर 1 को लॉन्च किया गया था. द फोटोग्राफ टेकन with the help of this technology about the balls of the earth, environment and forest were important. Another area in which the information from this satellite was useful as iconography. In 1981 Bhaskar 2 was launched from Soviet Union. And उसके बाद भास्कर 1 के सक्सेसफुली लॉन्च के बाद भास्कर 2 भी इंडिया ने लॉन्च किया. एप्पल Ariane passenger payload experiment. The first complete indigenously built satellite by ISRO in India, Apple was launched on 19 June 1981 from the French Guiana. इसरो के सक्सेसफुली लॉन्च के बाद इंडिया ने सेकंड कौन सा सैटेलाइट को लॉन्च किया? एप्पल करके नेम करके. Apple was beneficial in the field of education. The objective of providing emergency telecommunication service was successful. And वो किस चीज़ के लिए था? एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड के लिए.